Hello friends, welcome to Study Center. In this video you are going to learn the first chapter Matter in Our Surroundings from class 9 Science, and it is a chemistry part. So the chapter name is Matter in Our Surroundings. It means we are going to study what are the matters that are existing in our surroundings, how they behave, how they act, how they give their contribution to the nature. So that we must know that what is matter first. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर. यहाँ पे यूनिवर्स की कोई भी चीज़ ले लें वो सब कुछ मैटर से बना हुआ है. यूर कोई अपने घर का कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी स्कूल, यू, वी ह्यूमन बींग्स, ऑल ऑफ अस आर मेड अप ऑफ मैटर. And in this video we will learn that what is matter made up of. So please join this channel and continue watching this video till the end. So what is matter? Anything that have both mass and volume. Anything that have both mass and volume is called matter. Now volume means what? Which occupies space. जो भी चीज़ space occupy करेगी उसको हम volume, वो उसकी volume हो जाती है. मीन्स अगर कोई भी चीज़ है जो अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है तो हम उसको बोलेंगे कि इट इज़ अ मैटर. नाउ लेट अस ट्राई टू have a glance view on the classification of matter that the modern scientists have classified the matter on the basis of physical properties and the chemical properties. तो physical properties means what? appearance कैसा है उसका texture कैसा होता है, वो किस तरह से कितने क्या शेप में होते हैं. ऑल दीज थिंग्स बिलोंग्स टू फिजिकल प्रॉपर्टीज़. और जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो वो आता है कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में, कैसे रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, और वो सब चीज़ों को हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं. तो ये इन दिस चैप्टर मोस्ट ऑफ अस वी आर गोइंग टू स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. इन द नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स एंड कमिंग लेक्चर्स वी विल go through the chemical properties also. Now let us start the physical nature of matter. What is the physical nature of matter and how it is defined? So that I told you that what is matter made up of. So matter is made up of particles. Which type of particles? The particles which are very small and the small beyond our imagination. हम अपनी imagine नहीं कर सकते उतने small होते हैं जो particles matter को consist करते हैं. So how much small? अगर मैं example दूँ तो अगर आप एक crystal of salt लेंगे, salt का crystal अगर आप लें तो एक टाइनी स्पून में, एक छोटी सी स्पून में अगर आप क्रिस्टल लेंगे सॉल्ट का तो उसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स आपको मिलेंगे, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स. So you can think of that how small the particles are. Even we cannot watch them or see them, observe them from a naked eye also. So the particles are very small in short. Now second thing, the particles of matter are continuously moving. Particles of matter keep moving continuously because they possess a kinetic energy. क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है इसलिए वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जो हम फिजिक्स में आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे. तो काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और इवन ह्यूमन बींग. वी हैव ऑल्सो हैव काइनेटिक एनर्जी इफ वी आर मूविंग. सो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है या फिर उस एनर्जी की वजह से जो ऑब्जेक्ट मूव करता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. अब इसको डिटेल में मैथमेटिकली फिजिकली हम पढ़ेंगे जब फिजिक्स के लेक्चर में कन्वर्ट करेंगे तब. द थर्ड पॉइंट इज, as we saw, the matter is attract each other, particles attract each other, and the particles are binded by a force. Particles are binded by a force. Which type of force? That we will study in the later lecture. So now you just have to know that there is a force which is acting between the particles of matter. That is the reason the particles are not getting split up. Otherwise उनको split up हो जाना चाहिए था, लेकिन पार्टिकल स्प्लिट अप नहीं होते हैं. आप अपनी पेन लो, पेन के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अगर उनके अंदर फोर्स नहीं होता तो वो सब पार्टिकल स्प्लिट नहीं हो सकते थे. मीन्स पार्टिकल्स एक स्पेसिफिक फोर्स से बाइंड है, दैट्स वाई दे आर नॉट गेटिंग स्प्लिटिंग. दैट इज द 3 प्रॉपर्टीज दैट वी स्टडी अबाउट द पार्टिकल्स. नाउ व्हेन वी हैव स्टडीड व्हाट इज मैटर, हाउ दे what it consists of, we must know that in what matter, in what states the matter exists. So states of matter is the basic concept that you all have studied from, I think, 4th or 5th standard. We are studying states of matter. There are 3 states of matter: solid, liquid and gaseous. So these are the 3 states of matter that are existing in nature. Actually when you will study in higher standard you will come to know that actually there are 5 states of matter. That is, one is Bose-Einstein condensate and another is plasma. These are the two another matter of states, plasma and Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate, ये दो जो मैटर हैं वो और पार्टिकल स्टेट्स में
दो स्टेट और हैं जो एक्स्ट्रा हैं, वो आप लोग हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, पर हियर इन दिस 9th स्टैंडर्ड यू जस्ट हैव टू नो दैट देयर आर 3 states of matter: solid, liquid and gas. So basic properties we are going to learn. Let us see the basic properties of solid, liquid and gaseous state. First of all, let us see the basic properties of solid state. Four properties are there for solid state: definite shape, definite volume, it is rigid and it is incompressible. अब डेफिनेट शेप का मतलब क्या है? सॉलिड के इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू लिक्विड एंड गैशियस. That's why the force molecules and atoms are attracted with each other with a higher amount of force. That's why it does not change the shape. Even if you apply force, the shape will not change. Shape will not change. If you apply a large amount of force, then it will break, but it will not change the shape. So it has definite shape. और अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो वो टूट जाएगा. इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? हम रिजिड प्रॉपर्टी बोलते हैं कि वो रिजिड होते हैं, टफ. थर्ड प्रॉपर्टी डेफिनेट वॉल्यूम. डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब क्या है? डेफिनेट वॉल्यूम मीन सिंपली वॉल्यूम चेंज नहीं होगी. अब वॉल्यूम किस पे डिपेंड करती है? वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन शेप. तो जब शेप चेंज नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगी. फोर्थ प्रॉपर्टीज इनकम्प्रेसिबल. कंप्रेसिबिलिटी पहले पता होना चाहिए उसके लिए. तो कंप्रेसिबल का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ है उसके अंदर मैटर और पार्टिकल चेंज बिना करे हम उसको जो नॉर्मल स्पेस है उससे कम स्पेस में ऑक्यूपाई करवा के रख सकते हैं कि नहीं. अब कोई पर्टिकुलर हम ऑब्जेक्ट ले लें तो वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी जितनी उसकी वॉल्यूम है या जितना उसको स्पेस चाहिए. बट कंप्रेसिबल ऑब्जेक्ट वो होता है जिसको हम फोर्स अप्लाई करके कम स्पेस में भी ऑक्यूपाई कर सकें. दैट इज कंप्रेसिबल. बट सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. आप एग्जाम्पल ले सकते हो. आप कोई अपनी पेन ले लो, एक बुक ले लो, वो उनको आप कितना भी प्रेस कर लो, कितना भी फोर्स अप्लाई कर लो, it will break, it will torn, but it will not change the shape, and so it will not be compressed. Now coming to the liquid or fluid state, we have the liquid state has no fixed shape. कोई fixed shape नहीं होता. You have seen if you take a glass of water, the shape will be like the glass, and if you take in the water in the bowl, the shape will be like the ball. So liquid can continuously change the shape. Now what is the reason for that? So जो intermolecular force है, intermolecular फोर्स जो है वो लिक्विड में थोड़ा कम होता है सॉलिड से, और स्पेस भी ज़्यादा होता है. स्पेस इज ऑल्सो लार्जर देन सॉलिड. दैट्स वाई दे कैन फ्रीली मूव इन द लिक्विड स्टेट. दैट्स वाई वॉल्यूम उसकी चेंज नहीं होती है, पर उसके जो शेप है वो चेंज हम कर सकते हैं. और उसी प्रॉपर्टी को जो हमने रिजिड पढ़ी ऊपर, तो रिजिड को हम उल्टा कर दें तो नॉन रिजिड. ऑब्वियसली लिक्विड इज जस्ट अपोजिट फ्रॉम सॉलिड स्टेट. दैट्स वाई सॉलिड लिक्विड इज नॉन रिजिड. जैसे सॉलिड रिजिड था, हम उसको ब्रेक कर सकते थे पर शेप चेंज नहीं होता था. हियर द शेप कैन नॉट बी चेंज. दैट्स वाई लिक्विड्स आर नॉन रिजिड एंड इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम. वॉल्यूम इसकी फिक्स होगी. हम 500 ml ऑफ वाटर लेंगे, चाहे किसी भी वेसल में डाल दें, शेप चेंज होगा पर उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी. इट विल रिमेन 500 ml ओनली. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज गैशियस स्टेट. This state is very important for all of you. If you are going to study chemistry in the higher standards, then you will come to know that so many laws that have made by scientists and chemists, they are mostly based on gaseous state. So gaseous state has lot of applications also. That's why the most of laws and equations जो बनाए हैं, discover हुए हैं, वो gaseous state पे हुए. सबसे ज़्यादा researches जो हुई हैं वो gaseous state पे हुई हैं, because it is the most free state and lot of things that whole atmosphere is made up of gases. That's why it is most important. So here we are just going to study the properties. In higher standards you will study some more things about that also. Now gaseous state हम पढ़ रहे हैं. इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है हाईली कंप्रेसिबल. अब कंप्रेसिबिलिटी मैंने अभी आपको बताई क्या होती है. अब सिंपली जैसे सॉलिड इनकम्प्रेसिबल थे, गैस कंप्रेसिबल है. मतलब हम गैस लेंगे, कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस को हम कंप्रेस करके प्रेशर अप्लाई करके हम उसको कम वॉल्यूम करके किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं. स्मॉल कंटेनर में लार्ज अमाउंट ऑफ गैस हम कंटेन कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी. इसलिए गैस कंप्रेसिबल है. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज डिफ्यूजिबल. अब डिफ्यूजिबल का मतलब क्या है? अब डिफ्यूजिबल इज अ प्रॉपर्टी. सो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन क्या होता है. डिफ्यूजन क्या होता है वो पता होना चाहिए. डिफ्यूजन की डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है. द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर. दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स के बीच में जो इंटरमिक्सिंग होती है उसको हम बोलते हैं, तो इंटरमिक्सिंग को डिफ्यूजन. Suppose you will take alcohol and water. They are the two different types of matter.
उनके अंदर जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है वो भी डिफरेंट है. जब वो इंटरमिक्स होंगे तो वो इंटरमिक्स होने में जो प्रोसेस होगा, मे बी बबलिंग हो सकती है, एनीथिंग दैट प्रोसेस ऑकर, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. तो गैसेज डिफ्यूजिबल हैं. वाई? गैसेज को हम दो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज लेंगे, वो डिफ्यूज होके, पार्टिकल्स के डिफ्यूज होके इंटरमिक्स होते हैं. दैट्स वाई गैसेज आर डिफ्यूजिबल. एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑल्सो. डिफ्यूजन की वजह से बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, वो जो आप पढ़ोगे आगे स्टैंडर्ड्स में. बट डिफ्यूजन इज अ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस. नाउ इट exerts pressure. Third property is gases exerts pressure. How does it exerts pressure? As I told you that matter consists of particles, small particles, and which are continuously moving due to its kinetic energy. Kinetic energy की वजह से continuously random motion करते रहते हैं वो. अब random motion करेंगे तो collision भी होगा. और जब gaseous state की बात करें तो intermolecular जो space है वो भी बहुत ज़्यादा है, intermolecular space भी. तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कोलाइड करेंगे. तो पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे. दे विल कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, इवन द लिड ऑफ द कंटेनर. सो व्हाट हैपन्स, इट क्रिएट्स अ प्रेशर. तो वो प्रेशर क्रिएट होता है जो सॉलिड तो नहीं कर पाएगा, लिक्विड समहाउ कर सकता है, पर मोस्ट ऑफ द गैस में सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है. सो दीज वर द बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर एंड मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का हाफ हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. आगे नेक्स्ट जो हाफ चैप्टर है वो हम कंप्लीट करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. So please subscribe the channel so that you will get the notification when the new lecture is uploaded.